A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the chapter number 3, that is a change in profit sharing ratio among existing partners. So in this video, firstly, we discussed the question number 36, the remaining part of the question number 36, because in the last video, we discussed how partnership firm passed the necessary entries and prepared the revaluation account at the time of change in PSR, which is also categorized under the category number 1, accounting treatment of revaluation of assets and reassessment of liability when firms want to record the revised value in the books of account. And thereafter we discussed the question number 43, by which we discussed the case number 2, when partnership firm do not want to record the revised value in the books of firm. And thereafter we will move to the last topic of this chapter, that is an adjustment of capital. So without getting delay, let's we discuss the remaining part of the question number 36, जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने पीएल अप्रूव, जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी रिवैल्यूएशन फंड बनाया हुआ था लास्ट वीडियो में. तो उसका हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. हाउ वी विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 36. सो इन द क्वेश्चन नंबर 36, if we are talking about the preparation of partners capital account and the balance sheet at the time of the change in PSR with the accounting treatment of revaluation and the reassessment of the liabilities are as follows. So they are basically three partners, A, B and C. A, B, C, A, B, C, and it is in particulars and it will be a particulars. So first of all, we write down the opening capital of the partners by balance BD. That is in 3 lakh, 1,50,000 and 1 lakh. As well as you can see that in this question number 36, firstly we adjust the profit on revaluation among old partner in their old ratio. So it affects the credit side of the partners and we write down the buy revaluation and the profit of revaluation is 36,000, जिसे हम 3:2:1 में बांटेंगे तो आएगा 18,000, 12,000 and 6,000. And goodwill of the firm is valued is 48,000 और जिसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था लास्ट वीडियो में, यू नो वेरी वेल, एक एंट्री पास की थी गुडविल की. वो एंट्री क्या थी? दैट इज इन C's capital account debit to A's capital to B's capital. Got it? ये हम लोगों ने एंट्री पास की थी. And the goodwill of the firm is 48. A सैक्रिफाइस किया था 330, B ने सैक्रिफाइस किया था 130 और C ने गेन किया था 430. And the goodwill of the firm is 48,000. 48,000, so 4,800, and now will be a 14,400. Is that correct? Yes, 14,400. So the total is 19,200. C's capital debit 19,200 to A's capital 14,400 to B's capital. How it is find out? 48,000 is a, so एक बार फिर से हम करेक्ट कर लेते हैं. It will be a and 6,400. Sorry for the miscalculation. 110 is 4,800 and it will be a 1,600. So ये हम लोगों ने एंट्री पास की थी इन द लास्ट वीडियो. C's capital debit to A's capital to B's capital. अब हम लोग क्या करेंगे,
इस एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? ए और बी की कैपिटल क्या है? क्रेडिट है। ए और बी की कैपिटल क्रेडिट है, तो ए और बी के कैपिटल फिर क्रेडिट पे जाकर लिखेंगे बाय सीज कैपिटल। ए के कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट है? 4800, बी में कितना क्रेडिट है? 1600। और सी में डेबिट करेंगे किस नाम से? ए के नाम से और बी के नाम से। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यही ज्यादा आपको ट्रबल क्रिएट करेगा। यानी इन द चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जस्ट जैसे हमने एंट्री किया है, जो पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहा है उसके क्रेडिट पे शो करेंगे और जो पार्टनर्स गेन कर रहा है उसके डेबिट में शो करेंगे। ये हो गया। उसके बाद इन द बैलेंस शीट यू कैन सी दैट द जनरल रिजर्व, बट देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन द एडिशन इन द एडजस्टमेंट, मतलब जनरल रिजर्व इज आल्सो अपीयर्ड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 36, बट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं बताइए? सोचिए, when there is no information in this situation, reserve, accumulated profit or accumulated losses will be distributed by old partner in their old ratio. Yes. तो जो जनरल रिजर्व है उसको हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसकी एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व डेबिट टू ए's कैपिटल, टू b's कैपिटल, टू c's कैपिटल, एंड द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज 1,20,000 और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में 36, 26, 16, 60,000, 40,000 and 20,000. So लिखिए बाई जनरल रिजर्व 60,000, 40,000, 20,000. So ये आपने बना लिया क्या? It is a partners capital account of the partners A, B and C at the time of changes profit sharing ratio. उसमें आप लोगों ने क्या क्या किया? रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट शो किया बिकॉज पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दूसरा आपने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। अब तीसरा आपने जनरल रिजर्व यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व किया। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने लगभग सभी मोस्ट ऑफ द ऑल द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आप लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो किया और उसके बाद क्या करेंगे? लास्ट में बैलेंस करेंगे। So ये आपकी बन गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दिस सिचुएशन एंड द बैलेंस इज पार्टनर A 3,82,800, B 2,03,600, पार्टनर C 1,19,600। ये बैलेंस करके आएगा तो आप देख लेना उतना ही बैलेंस आएगा। सो दिस इज इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा है बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, आपको न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। सो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? इसका पहले फॉर्मेट बनाएंगे। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर्स है और क्रेडिटर्स से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं क्वेश्चन में उसको कंसीडर किया जाएगा। जैसे पहला एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोला था? एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोला था? क्रेडिटर्स की वैल्यू रिड्यूस करनी 15,000, तो पहले क्रेडिटर्स की वैल्यू 2 लाख थी, अब 14,000 से क्या करनी है? रिड्यूस करनी है 15,000 से। सो 2 लाख माइनस 15,000 ये आ गया 1,85,000। उसके बाद जनरल रिजर्व को हम शो नहीं करेंगे क्योंकि जनरल रिजर्व इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। कैपिटल जो पुराना कैपिटल है वो नहीं शो करेंगे, न्यू कैपिटल शो करेंगे। सो कैपिटल का बैलेंस जो शो करेंगे ए बी एंड सी का, ए का कितना शो करेंगे? 3,82,800, बी का शो करेंगे 2,03,600 और सी का शो करेंगे 1,19,600। तो ये ए बी सी की कैपिटल है। उसके बाद प्रीमाइसेस इन द एसेट साइड यू कैन सी दैट इन द ओल्ड बैलेंस शीट प्रीमाइसेस की पहले वैल्यू थी 3 लाख, अब उसकी वैल्यू 10% से एप्रिशिएट हो गई, तो 3 लाख का 10% एप्रिशिएट हुआ तो 3 लाख में कितना ऐड करेंगे? 30,000। सो 3,30,000। मशीनरी, तो अगर आप मशीनरी देखोगे तो मशीनरी की पहले वैल्यू थी 180, अब एप्रिशिएट कितनी हुई मशीनरी की वैल्यू?
नहीं, डेप्रिशिएट हुई 5% से, तो 180,000 में बट जब आप 9,000 माइनस करोगे क्योंकि रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या होगा 1,71,000। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 10,000 से अप्रिशिएट हुई थी तो 120 से 10,000 बढ़ा, सी हो गया 1,30,000। उसके बाद डेटर्स की वैल्यू कितनी थी पहले 2,50,000, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, प्रोविजन क्रिएट किया था आपने 4% 10,000, सो ये आया होगा आपका, इट विल बी 2,40,000 क्योंकि आपने प्रोविजन क्रिएट किया। आप चाहे तो प्रोविजन को अलग से शो कर सकते हैं, डेटर माइनस प्रोविजन। एंड लास्ट, बैंक में तो कोई चेंज हुआ नहीं था, सो बैंक का एज इट इज वैल्यू निकाल देंगे और उस ये बन गई आपकी बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। और उसके बाद क्या करेंगे हम, टोटल करेंगे ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द टोटल इज 8,91,000, 8,91,000। सो दिस इज अ फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पहले हम लोगों ने जनरल एंट्री पास की रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड द रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देयरआफ्टर हम लोगों ने जनरल एंट्री पास की रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद वी हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना प्रिपेयर किया, एंड आफ्टर दैट वी प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। व्हेन वी प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो रिवैल्यूएशन का, गुडविल का, जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट शो किया, और जब बैलेंस शीट बनाई तो रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड किया। यही तो पहला केस है। केस 1 क्या है, व्हेन firm want to decide the revised value in the books of account, and when revised value are to be recorded in the books of account, revised की वैल्यू तो रिकॉर्ड हुई है, सारी जो चेंजेस वैल्यू है वही आपने कंसीडर किया है। सो दिस इज एन सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 36, सो प्लीज नोट डाउन। Let's we move to the question number 43, which are related to the case 2, when partners do not want to record the revised value in the books of account. And it is a very important question for us, क्योंकि दोनों क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 36 एंड 43 से हम सारे जो केसेस है उसको इजीली समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, PQR are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 5:4:3, and the balance sheet creditor 50,000, outstanding 5,000, general reserve 75,000, capital 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively, bank 40,000, debtor 2 lakh 10,000, stock 3 lakh, furniture 60,000, plant and machinery 4 lakh 20,000. It was decided that from 1st April 2019 the profit sharing ratio will be 4:3:2. So पहले PQR में जो रेशियो था, ओल्ड रेशियो क्या था, न्यू रेशियो क्या था, दोनों डिफरेंट था। PQR का ओल्ड रेशियो था वो था 5:4:3, whereas the new ratio of PQR is 4:3:2, चेंज हुआ, so it is called reconstitution of partnership form। और इस सिचुएशन में हम लोगों ने कुछ रिवैल्यूएशंस किए, फर्नीचर 80% ऑफ इट्स वैल्यू हो गई, स्टॉक भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 4 lakh, provision for doubtful debts for 10,000 on debtor, outstanding expense increased by 3,000, and now it is an important information given in the question is, please listen carefully, is that partners agree that altered value are not to be recorded in the books. Altered value are not to be recorded in the books means कि हमें जो चेंज वैल्यू उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, एंड दे आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, और वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट अ सिंगल जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव एंड आल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको रिवैल्यूएशन का भी इफेक्ट नहीं दिखाना है, मतलब रिवैल्यूएशन से जो रिवाइज्ड वैल्यू आ रही है उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, और ना ही जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कंडीशन क्या बन गई, दिस इज सिचुएशन व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू को ही अल्टर्ड वैल्यू कहते हैं,
revised value are not to be recorded, and general reserve also not distributed. जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. दिस इज एन क्वेश्चन नंबर 43. सो सबसे पहले सिचुएशन आपको मैंने बताया था, वी हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन. सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे, और स्टेटमेंट कैसे बनेगा इसका मैंने फॉर्मेट आपको दिया हुआ है ऑलरेडी. पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, यानी जो आप प्रॉफिट एंड लॉस रफली या अकाउंट के थ्रू निकालते हैं, आप स्टेटमेंट के थ्रू निकालते हैं. सबसे पहले दिया फर्नीचर बी टेकन एट द 80% ऑफ इट्स वैल्यू. तो क्या हुआ, डिक्रीज हो गई ना, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर की वैल्यू 20% कम हो गई. पहले फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 60,000. अब 20% कम हो गई तो कितना हो गया, 12,000 कम हो गया. डिफरेंस देख लो, 80% हो गई, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी, 60 का 80% 48,000. पहले 60,000 था, 12,000 आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया. दूसरा कह रहा है स्टॉक बी एप्रिशिएटेड. तो ये क्या है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक. स्टॉक की वैल्यू एप्रिशिएट हुई 20%. स्टॉक की वैल्यू कितनी, 3 लाख का 20% 60,000. थर्ड, प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यूड एट 4 लाख. और प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था, 420. अब ये भी डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. 20,000 से वैल्यू क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई. प्रोविजन बनाना है 10,000 ऑन डेटर. सो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना बनाना है, 10,000. फिफ्थ पॉइंट बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी इंक्रीज बाय 3,000. ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, लॉस होता है. इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना, 3,000. सो आपने देखा कि जितने भी एडजस्टमेंट्स गिवन है उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, फर्नीचर की वैल्यू डिक्लाइन हुई, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हुई, डिक्लाइन हुई, प्रोविजन क्रिएट किया बैड डेब्ट्स पे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हुआ. सो इंटायरली लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, इसे हम लोग फाइनली फाइंड आउट करेंगे. सो इसके बाद अगर हम लोग देखें 12,000, 32, 30, 35, 35,000 एंड दिस इज 70,000. 70,000 प्रॉफिट हुआ है, ये भी लॉस है, सॉरी फॉर दैट. प्रोविजन भी आपके लिए क्या होता है, लॉस होता है, एक एक्सपेंस होता है. सो अगर अब आप देखो तो 20, 32, 42, 45. 45 इज अ लॉस, 60 इज अ प्रॉफिट. सो नेट इज 15,000 इज अ प्रॉफिट ऑन revaluation. It is a profit on revaluation. ओके, ये हो गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट आप लोगों ने क्या किया है, जनरल रिजर्व को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन लिखा है ना, जनरल रिजर्व आल्सो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. तो हम क्या करेंगे, जैसे हम रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिमिलरली हम जनरल रिजर्व को भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज 50,000. इसी में हम लोग जनरल रिजर्व को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. एंड द वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व इज 75,000. सो द टोटल वैल्यू विल बी 90,000. ये एडजस्टेड वैल्यू है, इसी को हमें क्या करना है, पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्ट करना है. और उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. कितने पार्टनर है, पी क्यू आर. ओल्ड रेशियो क्या है पी क्यू आर का, 512, 412, 312. और न्यू क्या है
493929, तो ये हो जाएगा 36, 15 माइनस 16, 36, 12 माइनस 12, 36, 9 माइनस 8। सो 136 क्या किया इसने, गेन किया, और ये 136 क्या किया, सैक्रिफाइस। क्योंकि जिसका आंसर प्लस में आता है उसे हम गेन मानते हैं, जिसका माइनस में आता है उसको सॉरी प्लस में आता है उसको हम सैक्रिफाइस मानते हैं। ये तो पता ही है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। अब क्या करना है सर, अब आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और रिवैल्यूएशन फाइंड आउट किया और जनरल रिजर्व की वैल्यू को फाइंड कर दी। जनरल रिजर्व का भी बिहेवियर वैसे ही है जैसे हमने रिवैल्यूएशन का है, मतलब रिवैल्यूएशन को भी रिकॉर्ड करना है और जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यानी दोनों का नेगेटिव सेंस है, नॉट। फिर उसके बाद थर्ड क्या होगा, हम एंट्री पास करेंगे, सिंगल एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी P गेन कर रहा है, Q सैक्रिफाइस कर रहा है, सो P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल, ये एंट्री पास। एंट्री के लिए थोड़ा सा हम उधर कर देते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल, एंड दिस इज 90,000, तो 90,000 की वैल्यू निकालेंगे लोग के हिसाब से, जैसे हम लोग गुडविल में करते थे ना, जो गेन करता था उसमें जो वैल्यू होती थी उसको उसके गेन रेशियो से प्रेजेंट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो ये कितना देगा, इट विल बी ऑफ 2,500। So P will be debited by 2,500, whereas the R is credited by 2,500. So this is a journal entry. ये बन गया आपका क्या, जर्नल एंट्री आपने पास कर लिया, यानी आपने पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन बनाया, फिर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनाया, जो प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन में उसने जर्नल रिजर्व को ऐड कर दिया, तो टोटल एडजस्टेड वैल्यू पता चली 90,000। फिर उस 90,000 को हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर उनके गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बेसिस पे उनके अकाउंट में एंट्री कर दिया। सो अगर हम लोग अब कैपिटल फाइंड आउट करें, यानी न्यू कैपिटल फाइंड आउट करें किसकी, P की, Q की, R की, तो P की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, P की ओपनिंग कैपिटल थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, फॉर Q 3 लाख एंड फॉर R 2 लाख। अब अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें न्यू बैलेंस शीट बनानी है। सो ओपनिंग कैपिटल 432 और हमने इसको एडजस्ट किया है, तो P में माइनस होगा 2,500, वेयर इज R में प्लस होगा 2,500। सो 2 लाख 2,500 और ये है 3,97,500। ये न्यू कैपिटल हो गई ऑफ P एंड R। यस, तो ये आपने क्या किया, अभी आपने लगभग 70% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपने जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, आपने रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं किया। रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना ही नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहां करना था, पार्टनर्स कैपिटल में कर दिया। तो आपका जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी P, Q एंड R की, Q की तो वही रहेगी, वो ये रहेगी, यानी वैल्यू प्रिपेयर्ड द न्यू बैलेंस शीट, कुछ भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ आपको न्यू कैपिटल यही उतारना है। P 3,97,500, Q 3 लाख एंड R 2,02,500। यही इस पूरे सेगमेंट का रिजल्ट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, मैंने भी जस्ट बताया आपको चेंजेस कहां होगा, सिर्फ बैलेंस शीट में। मेरी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपको। क्या कंडीशन है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना है और ना ही रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, यानी सब चीज सेम रहेगी, कोई चीज चेंज नहीं होगी। यानी जैसा क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन है, कितना दिया था, क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना था 50,000 ही रहेगा।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू 5000 वही रहेगी। हमने उसको सेटल कर लिया पार्टनर्स के बीच में, बस जर्नलिज्म को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। 75,000। हाँ, कैपिटल जो है वो पी की, क्यू की और आर की चेंज हो गई। पी की हो गई 3,97,500, क्यू की हो गई 3 लाख और आर की हो गई 2,02,500। तो आप इसका टोटल करेंगे तो वही टोटल आएगा जो पुरानी वैल्यू शीट का टोटल था, 10,30,000। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो वही आंसर दिया होगा जो पुरानी वैल्यू शीट की टोटल का आंसर था। और एसेट साइड में सिमिलरली वही छाप देंगे, वही कॉपी कर लेंगे। कैश इन बैंक, बैंक की वैल्यू, डेटर की वैल्यू, स्टॉक की, फर्नीचर की। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी न्यू वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 40,000, 2,10,000। तो सर कोई चेंज नहीं होगा तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन में कहा है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आपको बनानी है, जो चेंज है वो तो आपको दिखेगा ही ना न्यू बैलेंस शीट में, तो आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। तो बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी, बट वैल्यू आपको जहां चेंज रहेगी, कहां चेंज हुआ था कैपिटल में, सिर्फ वहीं चेंज करके दिखा देंगे बस। देख रहे हो, एसेट साइड तो चेंज ही नहीं हुआ। यही तो कंडीशन है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। इसमें आपने रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ ओल्ड वैल्यू ही कंसीडर की है, न्यू वैल्यू को पूरी तरह से क्या किया है, इग्नोर किया है। So this is the solution of the question for 43, and this question is related to the when revised value are not to be recorded and journals are also not distributed. Okay, so please follow the following steps, and with the help of the following steps you can easily construct a pass a single journal entry to show these aspects, as well as you can easily prepare the new package. Okay, so please note down. So let's we move to the next topic of this chapter. This is an adjustment of capital, but before that let's we discuss the very important topic of this chapter, जो देखने में बहुत छोटा सा टॉपिक है, but it is a very important topic for us. So the topic is when goodwill is already appears in the books. Basically you know very well कि at the time of changing PSR, sacrificing partner को compensate करता है gaining partner in the form of goodwill. तो this is a goodwill is valued. वो goodwill कैसे होती है? goodwill जिसको हम value करते हैं अभी just, but हो सकता है before the valuation of the goodwill, some of the amount of the goodwill is already appear in the books. Means if there is already goodwill shown in the asset side of balance sheet, यानी ऐसा हो सकता है कि पहले से ही गुडविल जो है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो हो रही है, मतलब ये गुडविल वैल्यूड नहीं है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर है। सो व्हाट इज गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स? जो गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट के एसेट में शो होती है उसे हम बोलते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, और जो गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं गुडविल इज वैल्यूड। तो जो गुडविल वैल्यूड होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन के फॉर्म में देता है, उसको बोलते हैं काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंजिंग पीएसआर। लेकिन ये गुडविल उस गुडविल से डिफरेंट होती है, क्योंकि ये गुडविल क्या है, ऑलरेडी बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपीयर है। सो इसको क्या कहते हैं, इफ देयर इज चेंज इन पीएसआर, मतलब अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, सो सच गुडविल, यानी कि वो गुडविल जो ऑलरेडी क्या है बुक्स में अपीयर है, सो सच गुडविल will be
by partner in their old ratio. डिस्ट्रीब्यूटेड कह लो या रिटन ऑफ कह लो, रिटन ऑफ बाय पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। उस गुडविल को क्या करते हैं, पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एंड द एंट्री विल बी, इसमें हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी फॉर दैट, गुडविल इज एसेट्स है तो गुडविल तो ऑलरेडी डेबिट है, उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल लेवल, जैसे ए बी पार्टनर है तो उसको क्या करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ कर लेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओके, सो प्लीज नोट डाउन, इट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक but it is a very important topic while we solving the numerical question. So in today's video we discuss a lots of the theoretical as well as the numerical topic, and I hope today we discuss all the things very easily. आज के लिए इतना ही, thank you, take care, goodbye.